Hello everyone, welcome to today's discussion on अजमेर दरगाह। विगत कई दिनों से या लगभग महीने से आप सुनते आ रहे हैं अजमेर दरगाह को लेकर के। ये एक बहुत ही समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। तो इस दरगाह का इतिहास और वास्तुकला क्या है, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि ये हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के सिलेबस के किस पेपर से रिलेट करता है। तो ये सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर से रिलेट करता है। इंडियन आर्किटेक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी सीएसई एग्जाम्स आर्ट एंड कल्चर सिलेबस। Previously, the commission had asked questions about various historical monuments and their architecture. Additionally, knowing about places in the news essentials. Why in news in this topic? On November 27, an Ajmer court accepted a petition from the Hindu Sena. The petition claims that there is a Shiv temple situated beneath the revered Ajmer Sharif Dargah and requests that an archaeological survey should be conducted to ascertain the same. This case emerges amid a series of similar legal disputes in India, where claims have been made regarding the existence of Hindu temples beneath prominent Islamic religious sites. दरअसल 7 नवंबर को अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को स्वीकार कर ली। पिटीशन में दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव टेम्पल है और अनुरोध किया गया कि इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे से सर्वे कराया जाना चाहिए। यह मामला भारत में इसी तरह के कानूनी विवादों की एक चैन के बीच उभरा है, जहां प्रमुख इस्लामी धार्मिक स्थलों के नीचे हिंदू मंदिरों के अस्तित्व के बारे में दावे किए गए। Over the centuries, the Ajmer Dargah has established itself as one of the most important Sufi sites in the subcontinent. It stands as a testament to historical significance, spiritual harmony, and cultural richness. Dargah are shrines built over graves of revered religious figures, most often Sufi saints. The Ajmer Dargah is the mausoleum of Khwaja Moinuddin Chishti, also spelled Moinuddin, fondly known as the Garib Nawaz, one of the most pivotal figures for the spread of Sufism in the subcontinent. It was built by Mughal King Humayun in honor of the Khwaja Moinuddin Chishti. According to historical records from the Siyar ul Auliya, a comprehensive biography of Sufi saints, Khwaja Moinuddin Chishti arrived in Ajmer from Persia around 1192 CE, establishing the foundation of the Chishti Sufi order in India. His teachings emphasized universal love, peace, and spiritual equality. Architecture of Ajmer Dargah complex is an example of Indo-Islamic architecture. The white marble shrine adorned with intricate silver and gold decorations reflects the architectural
superstitions of the medieval period. The main gate, known as the Nizam Gate, was donated by the Nizam of Hyderabad in the 19th century, symbolizing the widespread reverence for the Sant. According to Explore, Rajasthan Ajmer Dargah is a true representative of Mughal style of architecture, with the structure of Dargah having the touches of Humayun to Shah Jahan. The grave is encased within a silver railing and adorned with a marble screen. Nearby, a dedicated prayer room constructed by Chimni Begum, the daughter of Shah Jahan, offers a serene space exclusively for women. The Ajmer Dargah has been a part of India's cultural diplomacy too, especially with the neighbors, while former US President Barack Obama has offered a chadar. Political leaders from the neighborhood, including Pervez Musharraf, General Ziaul Haq, Benazir Bhutto, and Sheikh Hasina, among others, have personally visited द दरगाह. हिंदी में आप समझे, डेट इट मीन्स सदियों से अजमेर दरगाह ने खुद को उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण सूफी स्थलों में से एक के रूप में स्थापित किया. यह ऐतिहासिक महत्व, आध्यात्मिक सद्भाव और संस्कृति समृद्धि का एक प्रमाण है. दरगाहें श्रद्धेय धार्मिक हस्तियों, अक्सर सूफी संतों की कब्रों पर बनी दरगाहें हैं. अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मोइनुद्दीन या मोइन अल दीन भी लिखा जाता है, का मकबरा है, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जो उपमहाद्वीप में सूफीवाद के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे. इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने बनवाया था. सियार उल औलिया के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के आसपास फारस से अजमेर आए और भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय की नींव रखी. उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिक प्रेम, शांति और आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया. दरगाह परिसर इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है. जटिल सिल्वर एंड गोल्ड की सजावट से सजी सफेद संगमरमर की दरगाह मध्ययुगीन काल की वास्तुकला की परिष्कार को दर्शाती है. मुख्य द्वार, जिसे निजाम गेट के रूप में भी जाना जाता है, 19th सेंचुरी में हैदराबाद के निजाम द्वारा दान किया गया था, जो संत के प्रति व्यापक श्रद्धा का प्रतीक है. अजमेर दरगाह मुगल शैली की वास्तुकला का एक सच्चा प्रतिनिधि है, जिसकी दरगाह की संरचना में हुमायूं से लेकर शाहजहां तक की झलक मिलती है. कब्र को चांदी की रेलिंग के भीतर रखा गया है और संगमरमर की स्क्रीन से सजाया गया है. पास में शाहजहां की बेटी चिमनी बेगम द्वारा निर्मित एक समर्पित प्रार्थना कक्ष है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है. अजमेर दरगाह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी हिस्सा रही, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ. जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चादर चढ़ाई और परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो और शेख हसीना सहित पड़ोसी देशों के राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से दरगाह पर आ चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि अजमेर सिटी का हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री पर नजर डालें. मीन्स हिस्ट्री ऑफ अजमेर सिटी. अजमेर, then referred to as a Ajay Meru, was once the capital of the Chauhans, a Rajput clan that ruled parts of present-day Rajasthan, Haryana, Delhi, and UP from the 7th to the 12th centuries. Ajay Dev is credited with constructing the city
in the mid 12th century. The town was sacked by the Afghan invader Muhammad Ghaur after he defeated Prithviraj III, popularly known as the Prithviraj Chauhan, in the second battle of Tarain in 1192. The Gaurid army killed, looted, and destroyed the pillars and foundation of the ideal temples in Ajmeru. Harvilas, Salts, an Ajmer-based jurist, wrote in Ajmer, historical and descriptive 1911 Sardaj books is the primary source material cited in the petition filed before the court. Subsequently, the city fell into a state of disrepair for almost 400 years until a revival during the regime of the Mughal Emperor Akbar 1556 to 1605. The mausoleum itself was built sometime in the second half of the 15th century. अर्थात अजमेर शहर के इतिहास के बारे में भी आप जानें कि अजमेर, जिसे तब अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, कभी चौहानों की राजधानी थी, जो एक राजपूत वंश था, जिसने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग वर्तमान उस समय का राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अजय देव को 12वीं शताब्दी के मध्य में शहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1192 में तराइन के सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, को हराने के बाद अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने इस शहर को लूट लिया और गौरी सेना ने अजय मेरू में हत्याएं की, लूटपाट की और मूर्ति, मंदिरों और स्तंभों की नींव को नष्ट कर दिया। अजय मेर स्थित न्यायविद हरविलास सारदा ने अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक पुस्तक 1911 में लिखा है और इस पुस्तक यानी सारदा की पुस्तक अदालत के सामने दायर याचिका में उद्धृत प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में मेंशन प्रस्तुत की गई है। इसके बाद शहर लगभग 400 वर्षों तक जीर्ण अवस्था में रहा। तत्पश्चात मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इसका पुनरुद्धार हुआ और यह लगभग 1556 से 1605 के बीच की बात है। मकबरा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। अब यहां पर एक चीज और जानना जरूरी है सूफीज्म के बारे में। सूफीवाद, सूफीज्म द mystical aspects of Islam emerged between the 7th and 10th centuries as a counterweight to the orthodoxy of the clergy and the increasing worldliness of the Ummah. Islamic texts refer to Sufism as tasawwuf. Sufi embraced a more ascetic and devotional form of Islam and often engaged in a variety of mystical practices. Eventually, Sufi practitioners came to be organized in various orders which congregated around the teachings of certain teacher or wali. Sufi traditions, especially those of the Chishti order of Sufism, to which Moinuddin and later Sufi masters such as Qutbuddin, Bakhtiyar Kaki, Hazrat Nizamuddin Auliya and Nasiruddin Muhammad Chirag Dehelvi, all of Delhi drew heavily from pre-existing local practices which were seen as a heretical in Orthodox Islam
the Chishti sons in India preached a message, a tolerance and inclusivity। अर्थात हिंदी में समझे सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवादी पहलू 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पादरी वर्ग की रूढ़िवादिता और उम्मा की बढ़ती सांसारिकता के प्रतिकार के रूप में उभरा। इस्लामिक ग्रंथों में सूफीवाद को तसव्वुफ कहा गया है। सूफियों ने इस्लाम के अधिक तपस्वी और भक्तिपूर्ण रूप को अपनाया और अक्सर विभिन्न रहस्यमय प्रथाओं में लगे रहे। अंततः सूफी अभ्यासी विभिन्न संप्रदायों में संगठित हो गए, जो एक निश्चित शिक्षक या वली की शिक्षाओं के इर्द गिर्द एकत्रित होते थे। सूफी परंपराएं विशेष रूप से सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय की परंपराएं, जिनसे मोइनुद्दीन और बाद में दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी जैसे सूफी गुरु जुड़े थे, पहले से मौजूद स्थानीय प्रथाओं से काफी प्रभावित थे, जिन्हें रूढ़िवादी इस्लाम में विधर्मी माना जाता था। भारत में चिश्ती संतों ने सहिष्णुता और समावेशिता का संदेश दिया। चिश्ती सिलसिला, द चिश्ती ऑर्डर वॉज फाउंडेड द 10th century by Abu Ishaq Sami in the town of Chist near Herat, but it was Moinuddin and his disciples who led to its spread in Indian subcontinent। अर्थात चिश्ती सिलसिले की स्थापना 10वीं शताब्दी में अबू इसहाक समी ने हेरात के पास चिश्त शहर में की थी, लेकिन मोइनुद्दीन और उनके शिष्यों ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख शिक्षक कौन हैं, ये भी आप जान लीजिए। मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिलास लाइक शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली। अब आप ये भी समझें कि इनके जो उर्स फेस्टिवल्स होते हैं क्या है। द उर्स फेस्टिवल्स कमेमोरेटिंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती is the most significant event at the Dargah, held annually for 6 days. The festival transforms Ajmer into a vibrant celebration of spirituality. Thousands of devotees from across the globe gather to pay homage with Qabbali performances, special prayer and offering chadar blankets to the tomb। That it means ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उर्स उत्सव दरगाह का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। हर साल 6 दिनों तक आयोजित होने वाला ये उत्सव अजमेर को आध्यात्मिकता के जीवंत उत्सव में बदल देता है। दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु कव्वाली, विशेष प्रार्थना और मजार पर चादर चढ़ाने के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो देखिए, अजमेर शरीफ के लिए ये था एक्चुअली इसकी जानकारी। अब चूंकि देखिए ये राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय देश की बात किया जाए तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करता है और भारतीय राज्यों में 5 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, जहां पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो आज इतना ही, धन्यवाद।